السلام علیکم ویورس، دس از می محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ سامعین کرام، آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں، یہ ویڈیو ہے سید قاسم علی شاہ صاحب کی، اور یہ ان کی ایک ٹریول ویڈیو ہے۔ سامعین کرام، ہر منظر ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہر چیز، اللہ پاک کی جو تخلیق ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے دیکھنے والے کی آنکھ، کہ جس سے وہ اس منظر کو دیکھ سکے اور انجوائے کر سکے۔ تو ایسے ہی ایک ویڈیو ہے جو میں آپ کے لیے لے کے آیا سید قاسم علی شاہ صاحب کی۔ بڑے خوبصورت انسان ہیں اور ماشاءاللہ ان کو جو دیکھنے کا انداز ہے بڑا خوبصورت ہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ سید قاسم علی شاہ صاحب، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ٹریول ٹو کلر کہار، کٹاس راج اینڈ دھربی ڈیم۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، جی ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ سفر میری زندگی کے 3 قیمتی ترین لوگوں کے ساتھ تھا۔ میرے والد صاحب، جن کا احسان میں کبھی نہیں اتار سکوں، میرے دل کے بہت قریب ریٹائرڈ چیف جسٹس انوار الحق صاحب، اور پاکستان کے نمبر 1 فوٹوگرافر گلریز غوری صاحب۔ ہم چاروں ایک ہی گاڑی میں دوپہر 12 بجے لاہور سے نکلے۔ گاڑی میں چلا رہا تھا اور ہماری منزل کلر کہار تھی۔ فقط 3 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم کلر کہار پہنچ گئے۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب کے جنرل مینیجر عاصم رضا صاحب، جو کہ میرے بہت ہی قریبی دوست اور ایک خدمت کرنے والے بیوروکریٹ ہیں، وہ کلر کہار انٹرچینج پہ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے دوست ملک سلیمان صاحب، جو کہ پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ کے صدر ہیں اور معروف کالم نگار بھی ہیں، اور ساتھ میں اقرا بہن بھی موجود تھی۔ اس دن موسم بہت شاندار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دھوپ بھی مزے کی تھی۔ میں اس سے پہلے کئی دفعہ کلر کہار جا چکا ہوں، لیکن ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب نے اس اسپاٹ کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ڈپٹی کمشنر چکوال بلال حسام صاحب بھی ملنے چلے آئے۔ بلال صاحب انتہائی قابل، شستہ، سلجھے ہوئے اور احترام کرنے والے آفیسر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلال صاحب جیسے آفیسرز کو ہمیشہ کمانڈ کی پوزیشن پر ہونا چاہیے۔ لنچ ہم نے مل کے کیا، شاندار باربیکیو، دال مکھنی اور میری پسندیدہ سبزی، اس کے ساتھ تندوری روٹی۔ گرما گرم روٹی سے کھانے کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم کلر کہار کا میوزیم دیکھنے چلے گئے۔ اس میوزیم میں پرانے فوسلز بھی پڑے ہوئے تھے۔ تاریخ کی گرد ان فوسلز، برتنوں، دروازوں اور ہتھیاروں پہ پڑتی رہی۔ پھر کسی ماہر آثار قدیمہ کی نظر نے اس گرد کو ہٹا دیا اور یہ سب نایاب چیزیں میوزیم کی زینت بن گئیں۔ پاس ہی ایک صوفی بزرگ حضرت ہو بہو کا مزار تھا۔ ہم نے وہاں حاضری دی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور میں تخت بابری پر کھڑا جھیل کے کنارے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جھیل کے وسط میں گھاس کے سرکنڈے ہاتھ اٹھائے صدائیں لگا رہے تھے، جناب ہم بھی حاضر ہیں، جناب ہم بھی حاضر ہیں۔ پاس ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں گلی کے کونے میں ایک قوال کلام گا رہا تھا۔ میں، ڈپٹی کمشنر صاحب اور عاصم رضا صاحب اکٹھے کھڑے ہو کے وہ کلام سنتے رہے۔ اس قوال کو نظر نیاز پیش کی۔ میں نے اس بازار سے لکڑی کا بنا ہوا ایک ہاٹ پاٹ خریدا اور واپس ٹی ڈی سی پی کے ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تازہ دم ہوئے اور پھر نیچے لان میں آ کے بیٹھ گئے۔ جھیل کنارے رنگ برنگی جھولوں پر بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ ہم سب کے درمیان آگ کا الاؤ روشن تھا۔ عاصم صاحب نے اپنی شاعری سنانا شروع کی۔ مجھے حدت محسوس ہو رہی تھی، مگر میں جانتا تھا یہ حدت کوئلوں کی حدت سے زیادہ عاصم رضا کی شاعری کی حدت ہے۔ جو فاصلے نہ بڑھا مرض اور علاج کے بیچ، میں مر نہ جاؤں کہیں تیرے کل اور آج کے بیچ۔ ہوتا نا آج کل آج کل آج کل۔ جو فاصلے نہ بڑھا مرض اور علاج کے بیچ، میں مر نہ جاؤں کہیں تیرے کل اور آج کے بیچ۔ شاعری کی یہ چھوٹی سی محفل ختم ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر بلال صاحب نے ہم سے رخصت چاہی۔ جاتے ہوئے ہمیں چکوال کی مشہور سوغات ریوڑی بھی پیش کی۔ بلال صاحب کے جانے کے بعد ہم نے بھی محفل برخاست کی اور کمروں میں چلے گئے۔ آپ سب جانتے ہیں مجھے لاہور سے بڑی محبت ہے، لیکن ذاتی اور پروفیشنل ذمہ داریاں، کام، وعدے اور بڑے عزائم لاہور میں میرا سکون چھین لیتے ہیں۔ لہٰذا کلر کہار کا یہ اسپاٹ
लाहौर से बगावत, राह फरार और सुकून ढूंढने का एक बहुत बड़ा जरिया था। रात को पुरसुकून नींद ली, सुबह उठे तो गर्मा गर्म परांठे, अंडे, आलू की भुजिया, चनों का बना सालन हमारा इंतजार कर रहा था। क्योंकि मुझे अचार बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आधा परांठा अचार के साथ खा लिया। इलायची में पकी हुई चाय, उसके ऊपर तैरती हुई मलाई जो पहले ही सिप पर आपके होंठों से चिमट जाती है। दुनिया इस मलाई को हटा के पीती है, लेकिन मैं इसको नहीं हटाता। मालूम नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चाय का इस्तकबाल वो मलाई कर रही होती है। आइए मैं आपको कलर कहार की तारीख के बारे में बताता हूँ। कलर कहार मोटरवे M2 के किनारे आबाद पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका है। ये इलाका तारीखी, रूहानी और अपनी खूबसूरती के लिहाज से एक नुमाया मकाम रखता है। 16वीं सदी में काबिल के हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर जब हिंदुस्तान फतह करने के लिए रवाना हुआ तो इसने कलर कहार में पड़ाव डाला। यहीं एक पहाड़ी चबूतरा तराश कर ज़हीरुद्दीन बाबर के लिए तैयार किया गया तख्त रखा गया और चबूतरे पे खड़े होके बाबर ने अपनी फौज से एक वल्वला अंगेज खिताब किया। आज भी ये चबूतरा खस्ता हालत में मौजूद है। कलर कहार की एक और नुमाया चीज यहाँ की वसी झील है, जिसको देखने के लिए बेशुमार से आते हैं। इस झील के किनारे एक खूबसूरत रेस्ट हाउस है। बच्चों के लिए झूले और मुख्तलिफ तरह के मकामात को सजा दिया गया है। नाश्ते के बाद हम कटास राज की तरफ चल पड़े। आसिम साहब की गाड़ी आगे थी। मेरी गाड़ी में पाकिस्तान के सबसे बड़े फोटोग्राफर गुलरेज गोरी साहब मेरे साथ बैठे थे। जहां कहीं फितरत अपनी खूबसूरती के जलवे बखेरती, गुलरेज साहब की फनकाराना निगाह इस खूबसूरती को भांप लेती। हम गाड़ी रोक लेते और वो इस मंजर को कैमरे की आंख में महफूज कर लेते। रास्ते में सरसों के पके हुए खेत मिले। गुलरेज साहब कैमरा लिए खेतों में निकल गए। दूर पीछे साल्ट रेंज की पहाड़ियां भी नजर आ रही थी। मैं आप सबको उस वक्त की खींची हुई नायाब तस्वीरें भी दिखाता हूं। आप ये तस्वीरें देखिए और फैसला कीजिए कि नज़ारे का सारा हुस्न नज़ारे में होता है या देखने वाली आंख में। यकीनन आपका जवाब मेरी तरह यही होगा, आंख नज़ारे को खूबसूरत बनाती है। मैं बड़े यकीन से बात कह रहा हूँ, गुलरेज साहब के काम पे घंटों बोला जा सकता है। पूरा चकवाल बहु सोना है, भला कटास दिया वे क्या बातां। मैं इत्था ते ढोल कटासे आया चिट्ठियां लग गई आसे। हम कटास राज पहुंचे। लाहौर वाले अपने फोटोशूट के लिए शाही किला जाते हैं, लेकिन मैं सबको कटास राज जाने का मशवरा दूंगा, क्योंकि कटास राज से बेहतर फोटोशूट कहीं नहीं हो सकता। आप ये तस्वीरें भी मुलाहिजा कीजिए। आइए ड्रोन कैमरे से लिए गए कुछ शॉट्स भी दिखाते हैं। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till. मैं आपको कटास राज की तारीख से भी वाकिफ कराता चलूं। कटास राज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉल्ट रेंज में वाक़या है। यहाँ मौजूद किले के बारे में कई सारी रवायात मशहूर हैं। बाज़ इसको 2500 साल पुराना, बाज़ 3000 साल पुराना, जबकि कुछ मौरखीन के मुताबिक ये 5000 साल पुराना है। कटास नाम की वजह यहाँ मौजूद तालाब है, जो कि हिंदू मजहबी रवायात के मुताबिक जब इनके देवता शिव की बीवी सती फोत हुई तो वो इसके गम में बेतहाशा रोए। इनके आंसुओं से 2 झीलें बन गई। एक झील यहाँ कटास राज में है और दूसरी हिंदुस्तान के शहर अजमेर में। इस झील को हिंदू मजहब में मुकद्दस मकाम हासिल है। साल में 2 बार इंडिया से हिंदू यहाँ आते हैं और इस झील में स्नान करते हैं। इस पूरे इलाके को इस तालाब की वजह से शोहरत हासिल है। इस किले के अंदर सैकड़ों साल पुराने मंदिर मौजूद हैं। शिव जी का मंदिर भी है। इसके साथ साथ रंजीत सिंह के फौजी सरदार हरि सिंह की हवेली भी यहीं मौजूद है। गवर्नमेंट का ये रेस्ट हाउस जहाँ सिर्फ 2 कमरे हैं, यहाँ से चुआ सैदन शाह का पूरा शहर नजर आ रहा था। मुझसे रहा ना गया। मैंने वहाँ खड़े खड़े फेसबुक लाइव से
1 मिनट 24 सेकंड की वीडियो बना दी जो कि वायरल हो गई। चकवाल से होते हुए हम दुराबी डैम पहुंचे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम एक झील को देखने के लिए 12 और बाज़ औक़ात 24 घंटे का सफ़र करते हैं, जबकि दुराबी झील लाहौर से फ़कत 2.5 घंटे, फैसलाबाद से 2 घंटे और इस्लामाबाद से 1.5 घंटे की मुसाफत पर। एक अच्छा दिन गुजारने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। यहाँ भी हमने ड्रोन कैमरे से कुछ मनाजिर को शूट किया। यहाँ से निकले तो हमें बताया गया कि पास ही रीछों की एक पनाहगाह है। आज से 15 साल पहले गवर्नमेंट ने कानून पास किया कि रीछ और कुत्ते की लड़ाई कानूनन जुर्म है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान से रीछ इकट्ठे किए गए, यहाँ लाए गए। इनमें से बेशुमार रीछ ऐसे हैं जो अपाहज हैं। आप अगर रीछों की पनाहगाह की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक कर दीजिए। पनाहगाह देखने के बाद हमने फैसला किया भेरा में थोड़ी देर के लिए रुकें। यहाँ हमें शाहिद इकबाल साहब ने लंच करवाया। लंच के बाद हम वापसी का सफर शुरू कर चुके थे। खैर से लाहौर पहुंचे। मैं बताता चलूं कि चकवाल, कल्लर कहार, कटास राज, दुराबी डैम जाने से पहले मैं कामों के बोझ की वजह से शदीद स्ट्रेस में था। इस सफर से वापसी पे मेरी स्ट्रेस खत्म हो चुकी थी, बैटरी चार्ज हो चुकी थी और जैसे ही अगला दिन शुरू हुआ बेशुमार काम मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने चंद ही दिनों में सैकड़ों दोस्तों, फैमिली मेंबर्स, दफ्तर के लोगों को इस जगह पे दोबारा भेजा है, क्योंकि खुशियां, मजे और मुस्कुराहटें शेयर करने वाली चीज है। हम भी कितने सादा हैं, हम सिर्फ फेसबुक की पोस्ट को शेयर करते हैं और समझते हैं नेकी मुकम्मल हो गई। आप भी अगर 1 या 2 दिन अच्छे गुजारना चाहते हैं तो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब की टीम से राब्ता कीजिए और अपना रुख कलर कहार की तरफ कर लीजिए। तो जी ये थी आज की वीडियो। मतलब सामने ग्राम, उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी पसंद आई होगी। सैयद कासिम अली शाह साहब माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के बंदे हैं और इनका जो अंदाज़ बयां है वो बड़ा कमाल का है। और ये पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों उस्तादों के उस्ताद हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन जो है वो कभी भी आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक कि आप नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का कोई वाक़या, उनकी ज़िंदगी का कोई वाक़या कोट ना करें। तो सैयद कासिम अली शाह साहब की जो वीडियोज़ हैं वो इसी चीज़ में मबनी होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए जो है ऐसा कंटेंट लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह।